international trade. So the very name, when we say international trade, it means that trading which is taking place between countries. Clear? Trading which is taking place between countries. International trade. We have already had this references when we were doing the chapter of globalization. If you remember it clearly, in economics, when we were doing the chapter of globalization, at that time we had discussed in detail about trading. उसके हमने डिस्कस किया था, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है वो भी डिस्कस किया था, प्लस we had also discussed the role of MNCs in trading, and I had discussed in detail about trade barriers, clear, opening or lifting of trade barriers in 1991. So this much of an understanding you have that when we are talking of international trade, what are we referring to? Clear? And it is not a new phenomena. Trading has been going on in India since time immemorial. If you remember, we have done the first chapter in 9th standard when we did in geography India size and location. Clear? You remember in India size and location we had done. Trading was going on for some very special commodities, especially spices, clear, cotton, which was of very superior quality in India through land and sea routes with other countries of the world. So this is trading. Now when we use the word trade, हमने use कर दिया है, तो इसमें दो important words आते हैं. Clear? That is import and export. When we are saying import, it means that those commodities means goods, clear, which we are bringing in our country from other countries. दूसरी countries में से जो commodities हैं, सामान है जो हम अपनी country में लाते हैं, ठीक है, that is called imports. और जो हम अपनी कंट्री से what we are selling to other countries, that is export. This is the basic. You must remember that when we are talking of trading, international trading, we are talking of import and export. Clear? Now when we are talking of trading, export and import, in that two very important things come. Next we think of that what we are selling and what we are buying. हम क्या खरीद रहे हैं और हम क्या बेच रहे हैं. What is the value and volume of trade? Value and volume मैंने आपको पहले भी करवाया है, but I'll repeat. Value means that what is our earning from that trade, what we are doing, उसमें से हमारी जो earning है, जो हमें profit है, clear? More the value, better is the trade. जितनी ज्यादा हमारी ट्रेड में वैल्यू होगी उतना ही हमारा ट्रेड अच्छा होगा and it will lead to economic prosperity of the country. Clear? It will lead to economic prosperity of the country. And in case our trade is having less value, उसकी वॉल्यूम ज्यादा है. वॉल्यूम का मतलब है कि हम बहुत सारा सामान बेच रहे हैं, ठीक है, but it is not bringing in that kind of profit. For example, when we were doing the chapter of industrialization, that time also I had explained, again I am repeating, कि अगर हम raw material बेचते हैं, if we are selling raw material, is it clear? We are not going to gain that much of profit as we are going to gain from when we are exporting finished products. इसका एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया था कि अगर हम एक रेडीमेड शर्ट खरीदते हैं, ये भी आपने 7th स्टैंडर्ड में चैप्टर किया हुआ है, स्टोरी ऑफ द शर्ट इन द मार्केट, कि जब हम एक रेडीमेड शर्ट खरीदते हैं वो हमें एक्सपेंसिव मिलती है. क्लियर? अगर हम कोई टेक्सटाइल मटेरियल जैसे कि कपड़ा
लेके हम कोई चीज बनवाते हैं, शर्ट बनवाते हैं, तो वो हमें चीपर पड़ती है. It means what we are doing, instead of purchasing a finished product, हम एक raw material खरीद रहे हैं. Clear? For making that shirt, the raw material is the textile material, that is the cloth. Similarly, you know, when Britishers were here, why they discouraged industry in India? Because what they were doing, they were exporting raw material from India for the British industries, and they were bringing in the finished products and were using India as a market to sell those finished products to get better profit. Clear? So coming back to value and volume. तो ये आपको मैं समझा रही थी कि अगर हमारा जो ट्रेड है, इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, उसमें वैल्यू ज्यादा है, सो वी टेंड टू गेन मोर, हमें ज्यादा प्रॉफिट होता है. सो दैट नेचुरली लीड्स टू द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री. दिस इज गिवन. एक आपने ये जो इस पैराग्राफ जो हमने स्टार्ट किया है इंटरनेशनल ट्रेड का, इसमें एक एंड में लाइन दी हुई है, अंडरलाइन ऑल ऑफ यू, underline this line for the MCQ. Advancement of international trade of a country is an index of its economic prosperity. Index of its economic prosperity, and it is therefore considered the economic barometer of the country. अब यहाँ पर इकोनॉमिक बैरोमीटर का क्या मतलब है? ठीक है, प्रॉस्पेरिटी का तो मैंने आपको बता दिया कि नेचुरली अगर ट्रेड हमारा अच्छा होगा, हमारे एक्सपोर्ट्स अच्छे होंगे, हम ज्यादा फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो नेचुरली वील गेन मोर. इज इट क्लियर? अब why we are saying index and barometer? In the manufacturing industry also we had done that. Iron and steel industry, is it clear? It is the backbone of the economy. Clear? Secondary sector. जब हम ये सारी चीजें करते हैं, उसके साथ जो रेफरेंस में और चीजें होती हैं, सो मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड, जो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ा, ज्योग्राफी में पढ़ा हमने पहले, जहाँ हिस्ट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ा, तो इन सब चीजों का कोरिलेशन है. ठीक है, आपस में कोरिलेशन है. सो नाउ इट इज कंसिडर्ड द इकोनॉमिक बैरोमीटर. बैरोमीटर क्या होता है? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विद विच वी आर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर. उसको हम मेजर करते हैं. ठीक है, उसके इंस्ट्रूमेंट में वो मरकरी होती है, वी विल नॉट गो इनटू डिटेल्स, हमें वो रिक्वायर्ड नहीं है. तो उससे क्या होता है कि हम मेजर करते हैं. जैसे हमारा बॉडी टेम्परेचर है, हम किससे मेजर करते हैं? थर्मामीटर से मेजर करते हैं ना, बॉडी टेम्परेचर की कितना है. ठीक है, इसी तरह अब यहाँ पर हमने टेम्परेचर नहीं मेजर करना है, हम क्या मेजर कर रहे हैं? इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री. क्लियर? और तो हमारी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री कहां से मेजर होती है? इट गेट्स मेजर्ड फ्रॉम द इंटरनेशनल ट्रेड, एंड दैट आल्सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ट्रेडिंग. और ये हमने डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर में ही कर लिया था कि द करेंसीज, इंटरनेशनल करेंसीज जो है वो हम किसके कंपैरिजन में मेजर करते हैं? डॉलर. राइट? So, and we know as far as rupee is concerned, it has less value than dollar in the international market. तो हमें अगर फॉरेन एक्सचेंज अर्न करना है, ठीक है, और ज्यादा उसमें मेजर करना है, ज्यादा उसको अर्न करना है, तो इट मींस दैट हमारा जो एक्सपोर्ट है दैट शुड बी मोर एंड ऑफ गुड क्वालिटी देन द इंपोर्ट. अगर हम रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, अब इंपोर्ट हम सिर्फ मटेरियल ही नहीं करते हैं. क्लियर? वी ऑल्सो इंपोर्ट सर्विसेज, वी ऑल्सो इंपोर्ट टेक्नोलॉजी. हम सिर्फ सामान ही नहीं खरीदते हैं, ठीक है, हम टेक्नोलॉजी भी खरीदते हैं. वी ऑल्सो परचेज, हम वो भी इंपोर्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव द फ्रेंचाइजीज. जैसे अब ये मैंने कितनी बार आपको एग्जाम्पल समझाए हैं. मैकडोनल्ड है हमारे पास, डोमिनोज है, ठीक है, तो इनके ओपन किचन है. whenever you are going to purchase over there, you can openly see. हमने इनका नाम लिया, फ्रेंचाइजी ली, हमने क्या इंपोर्ट की? टेक्नोलॉजी. ठीक है, ब्रांड तो हमको मिलता ही मिलता है, बट वी हैव इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी. इज इट क्लियर? सो इंपोर्ट सिर्फ गुड्स का ही नहीं होता, सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी एज वेल. नाउ लेट्स कम वेरी लोकल.
हमारे यहाँ जेसीटी है, ठीक है, वी हैव द जेसीटी टेक्सटाइल मिल। बहुत बार अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग में या किसी और उसमें इकोनॉमी में मैंने आपको उसका एग्जांपल समझाया है। अब जेसीटी में एक यूनिट जो है वो सिर्फ एक्सपोर्ट यूनिट है। उनका दो तरह के यूनिट्स हैं, एक सिर्फ एक्सपोर्ट यूनिट है। अब उस एक्सपोर्ट यूनिट में उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने जो मशीनरी बाहर से इंपोर्ट करके लगाई है, ये मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जब हम किसी बाहर की, जो बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए, जैसे सपोज मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जिस कंट्री के साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट हुए होते हैं, तो उन कंट्री से क्या करते हैं, हम मशीनरी इंपोर्ट कर लेते हैं टू गेट दैट क्वालिटी। बिकॉज इफ वी आर नॉट एबल टू हैव दैट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी इन आवर कंट्री, हमारे पास उस तरह की मशीनरी या टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है, तो हम उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। क्लियर? एंड दैट एक्सपोर्ट यूनिट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन द जीसीटी। अब उस पर्टिकुलर यूनिट में, सेक्शन में जो भी कपड़ा बनता है, ठीक है, वो होली सोली एक्सपोर्ट होता है। क्लियर? तो यहां पर हमने क्या इंपोर्ट किया, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट की। क्लियर? नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 91। इसमें अब मैं आपको समझाती हूँ। सी द थर्ड और द फोर्थ लाइन। When the value of export exceeds the value of imports, it is called favorable balance of trade. And on the contrary, if the value of imports exceeds the value of export, it is termed as unfavorable balance of trade. All of you are having your books, please underline this. What is favorable and what is unfavorable balance of trade? ठीक है, तो फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, इफ आवर एक्सपोर्ट्स आर मोर देन आवर इंपोर्ट्स, ठीक है, एंड वैल्यू, वैल्यू और वॉल्यूम मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, सो यू मस्ट बी एबल टू, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। क्लियर? तो अगर हमारी जो है ये रिवर्स चला जाता है, it means that we are importing more and exporting less. Clear? And less will be the value, so it means that our trade balance is unfavorable. Clear? तो अब हम बात कर रहे थे शुरू में कि बैरोमीटर इंडेक्स, तो ये इंडेक्स अगर फेवरेबल है तो इट मींस इट विल शो अस अ बेटर स्केल। ठीक है, जैसे अब आप देखते हो टीवी पे कोरोना वायरस का या किसी भी चीज का आपको इंडेक्स आते हैं ना, ग्राफ शो करते हैं, यू हैव डन इन मैथ्स आल्सो, हम प्लॉट करते हैं और हम प्रोग्रेस देखते हैं। ठीक है, चाहे हम इंक्रीज इन पॉपुलेशन है, इंक्रीज इन कोरोना वायरस केसेस है, तो हम देखते हैं, हमें ग्राफ पे प्लॉट होके आता है हाउ द एरो इज गोइंग, कि ये पिछले 6 महीनों में इस महीने में इतना था, उसके बाद इतना इंक्रीज हुआ, या वैसे अब इसका डाउन चला गया, अब फिर ये इंक्रीज हो रहा है, second wave is there and it is increasing, cases are again increasing। तो इसी तरह जब हम कहते हैं ना इंडेक्स वैल्यू एंड वॉल्यूम ऑफ ट्रेड का, तो हमारा जो ग्राफ है वो फेवरेबल प्रोग्रेस, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो है वो तभी दिखाएगा जब हमारी जो है बैलेंस ऑफ ट्रेड इज फेवरेबल। और वो फेवरेबल कब होगा, जब हमारी वैल्यू इज मोर, और वो वैल्यू कब मोर होगी, जब हमारा जो एक्सपोर्ट्स हैं दोज आर मोर देन द इंपोर्ट्स। क्लियर? सो दिस वाज अबाउट ट्रेड इन कनेक्शन विद दिस। उसके बाद आपके ये थोड़े से फैक्ट्स दिए हुए हैं, तो वी कैन ओवरलुक दिस, इसको हमें बहुत ज्यादा नहीं करता, बिकॉज ये परसेंटेजेस ऑफ ट्रेड एंड कमोडिटीज ऑफ ट्रेड्स कीप ऑन चेंजिंग। This is not a data which is stationary, कोई ऐसा डेटा नहीं है कि जो फिक्स्ड है, it keeps on changing। So coming to the third paragraph on page number 91, इसमें 2-3 words हैं which you need to understand। One is coke and then next is briquettes। I hope you have got the words। The commodities imported to India include petroleum and petroleum products, pearls and precious stones, chemicals, कोल, कोक एंड ब्रिकेट्स। इसको हम ब्रिकेट्स कहते हैं, TES की जो है, ES की हमने प्रोनाउंसिएशन छोड़ देनी है थोड़ी
इसी ब्रिकेट्स ही कहते हैं। ओके, सो ब्रिकेट्स क्या होते हैं? दीज आर द कंप्रेस्ड ब्लॉक्स ऑफ कोल डस्ट, कोल, COAL, कोल डस्ट होती है जो बहुत ही फाइन डस्ट, चूरा सा जो बच जाता है, उसको कंप्रेस करके, कंप्रेस कर का मतलब होता है कि उसको हम जैसे दबा के उसको फिर से सॉलिडिफाई करके एक ब्रिक की, एक किसी भी शेप की शेप दे देते हैं उसको हम, ठीक है। सो कंप्रेस करके, जैसे आपने पढ़ा है ना सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स पढ़ा है ना कि क्या होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स? वो क्या है? सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्स जब बहुत अंडर हीट एंड प्रेशर कंप्रेस हो जाते हैं, किया था ना हमने इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक रॉक्स किया था। तो जो सेडिमेंट्स हैं वो रॉक्स कैसे बन जाते हैं? छोटे छोटे जो हवा में जो कीटाणु वो इसके आ जाते हैं, कण, नॉट कीटाणु, कण आ जाते हैं, दैट इज द स्मॉल वेरी पीसेस ऑफ सैंड इज देयर, ब्रोकन रॉक्स आर देयर, ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। तो वो जब कंप्रेस हो जाते हैं अंडर लॉट ऑफ हीट एंड प्रेशर, तो वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं और वो सेडिमेंट्री रॉक्स एंड माउंटेन्स की शेप ले लेते हैं। इसी तरह जब हमने ये कंप्रेस वर्ड यूज किया, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट टू यू, दैट हाउ टू अंडरस्टैंड कि वो कैसे सॉलिडिफाई हो जाता है। तो जो कोल डस्ट होता है, ठीक है, उसको हम कंप्रेस करके ब्रिकेट्स बना लेते हैं। इसी तरह जो वुड डस्ट होती है, वुड डस्ट कौन सी होती है? आपने कई बार देखा होगा कि कारपेंटर जो है वुड को अपने उस पे रगड़ता है, ठीक है ना, जैसे फर्नीचर फर्नीचर बनाना है, फिनिश करना है, एजेस देनी है, एजेस को फिनिश करना है, तो हम जब लकड़ी को रगड़ते हैं, ठीक है, तो उसमें से बहुत सारी फाइन वुड डस्ट भी निकलती है। तो इसी तरह हम वुड सॉ डस्ट जो होती है उसकी, उसको कहते हैं हम, उसको भी हम कंप्रेस करके ब्रिकेट्स बना लेते हैं, विच आर यूज्ड फॉर इग्निशन, कहीं किसी तरह की आग शुरू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। जैसे अब आप देखो, हमने कोले, या जब आप लोहड़ी सेलिब्रेट करते हो, ठीक है ना, तो सबसे पहले आग, हम एक आग लगा के, जैसे थोड़ा सा ऑयल डालते हैं किसी न्यूज़पेपर या पेपर को आग लगा के, फिर हम उसको अंदर रखते हैं, एंड देन द रेस्ट ऑफ द बॉनफायर इज देयर, वो सारा फायर कैच कर लेता है। इसी तरह ये कहीं भी इंडस्ट्रीज में दीज कैन बी यूज्ड। और उसके बाद एक कोक है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो सॉइलेड, क्लियर, ये फ्यूल के लिए इंडस्ट्री में यूज होता है। So these were two things which you needed to understand. Rest, the various names of other products are given. So that is all right. Now next is tourism. The next topic is tourism as trade. Trade हमने कर लिया, export and import, जिससे हमें किसी तरह का कोई benefit होता है, हम earn करते हैं, profit earn करते हैं, which leads to development and economic prosperity. Now, how tourism is so important? We know that certain states in India are wholly solely dependent on tourism for their earning, especially hill stations. आप देखो कि समर वेकेशंस में क्या होता है, हिल स्टेशंस आर सो क्राउडेड, these places which have tourist attractions become so crowded, clear? तो उस टूरिज्म के साथ हम, आपने कितनी बार ऐड देखी होगी, इनक्रेडिबल इंडिया, टूरिज्म को इनकरेज करने के लिए हमने ऐड आती है गवर्नमेंट के द्वारा से, इनक्रेडिबल इंडिया, दैट इंडिया इज सच अ वास्ट कंट्री एंड इट हैज सच vast places of tourism that we try and encourage tourists from other countries to visit India. And we have every year tourists from other countries in lakhs visiting India. जब वो टूरिस्ट इंडिया में आते हैं तो पहले से बुकिंग ऑफ द टिकट्स, एयरपोर्ट, टैक्सीज, देन रीचिंग देयर डेस्टिनेशन, देन टूरिस्ट गाइड, फिर वहां की जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, वहां पर जितने होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं, ठीक है, वहां का जो लोकल क्राफ्ट है, क्लियर, ऑल दिस इज सोर्स ऑफ अर्निंग एंड ट्रेडिंग। जब आप भी कभी मार्केट इसमें जाते हो, हिल स्टेशंस पे जाते हो, समर वेकेशंस में जाते हो, यू आर ऑल्सो टूरिस्ट ओवर देयर, आप क्या करते हो वहां पर, अगर बहुत ज्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ परचेजिंग जरूर करते हो, ठीक है, यू बाय सोवेनियर्स, वहां से बाय करते हो, वहां के जो लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बाय करते हो। सम प्लेसेस, ऑल प्लेसेस हैव देयर ओन स्पेशलिटीज, नेचुरली जो वहां पर गया है वो अकोमोडेशन रहने के लिए भी देखेगा, सो दैट गिव्स इनकरेजमेंट टू हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी जो हमारा सारा है, होटल्स हैं, सारे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं,
इन सबको encouragement मिलती है, they are able to do their trading, business उससे चलता है। फिर हमारे पास सारे टैक्सीज हैं, क्लियर, उनका बिजनेस चलता है। So tourism plays a very important role, clear, in giving us earning and earning foreign exchange. And now you see why we are talking of the economy being depressed, clear, और क्यों हमारी GDP slow हो गई है? Because there are some states in India which are wholly solely dependent on tourism. Clear? Let's talk of Jammu and Kashmir. Let's talk of Himachal Pradesh. ठीक है? तो ये जो states हैं, ये suffer कर रही हैं because यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है। हिमाचल प्रदेश में तो फिर भी इंडस्ट्री है, जो जम्मू एंड कश्मीर इंडस्ट्री है, इट इज लोकलाइज्ड, लोकल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री है, लोग घरों में काम करते हैं, नमदे बनाते हैं, एम्ब्रॉयडरी होती है वहां पर। बट वहां पर क्या है, थोड़े बहुत क्रॉप्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स की होती है, ठीक है, एप्पल्स की होती है, पियर्स होते हैं, प्लम्स होते हैं, दैट इज सीजनल, क्लियर। बट वहां पर एक टूरिज्म था, बिकॉज वी नो दैट जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर, इट इज कॉल्ड एज हेवन ऑन अर्थ, जन्नत कहते हैं उसको, ठीक है ना, तो हेवन ऑन अर्थ कहते हैं। सो इट मींस दैट इट इज सच अ ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट, but because of these conditions and before that because of terrorist threats and terrorism in that state, tourism has been affected badly, और tourism effect होने के कारण वहां की economy has been shattered. Shattered का मतलब है कि तहस नहस हो जाना। वहां की इकोनॉमी शैटर्ड इसलिए हो गई, क्यों? क्योंकि वो स्टेट जो है वो हेविली डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है? टूरिज्म। तो टूरिज्म के अगर ठीक से नहीं चलता, सपोज अब तो कोविड-19 है ऑल ओवर द वर्ल्ड, people who were going from India, they were going to different countries. For these days people who prefer going abroad, दुबई जाते हैं, मॉरिशस, ये वो इधर उधर की जगह पे जाते हैं घूमने के लिए, तो वो लोग भी नहीं जा रहे because of COVID-19. So tourism is suffering everywhere. It's not only in India, but it is suffering everywhere. But अगर हम normal times की बात करें, ठीक है, तो that is why we say that we must have very good surroundings. That's why we say that we must keep cleanliness, because we want that the tourists who come from other countries, they must have a very good impression of our country, so that they keep on coming and we are able to earn foreign exchange. Clear? And earning and running of this whole industry is dependent on tourism. अब मैंने आपको कितनी सारी उसके साथ जो टूरिज्म के साथ लिंक्ड सर्विसेज हैं, मे बी आई हैव फॉरगॉटन वन और टू, और भी इसके साथ कितनी सारी सर्विसेज हैं जो लिंक्ड हैं, ठीक है। अब अगर हम जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर जा ही नहीं रहे, वहां की लोकल प्रोडक्ट्स वहीं पर ही पड़े रहेंगे, दुकानों में पड़े रहेंगे, ठीक है, वहां पर अगर पड़े रहेंगे तो पीछे मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाएगी। अगर पीछे मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाएगी तो उन लोगों की ऑक्यूपेशन कम हो जाएगी। अगर वो नहीं ऑक्यूपाई है, वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, शॉल, एम्ब्रॉयडरी, ऑल दीज काइंड्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ वूलन प्रोडक्ट्स व्हिच आर पॉपुलर फ्रॉम दीज हिल स्टेशंस, तो वो लोग दे आर अनएम्प्लॉयड। अगर वो अनएम्प्लॉयड है तो मनी सर्कुलेट नहीं हो रही है, दे आर नॉट एबल टू अर्न, एंड इफ दे आर नॉट एबल टू अर्न, नेचुरली वी आर नॉट एबल टू डेवलप। हमारी डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी तभी पॉसिबल हो सकती है व्हेन देयर इज मनी सर्कुलेशन इन द मार्केट, हम अर्न कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जो है वो है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है हमारा, ठीक है, एंड ट्रेड इज फेवरेबल। क्लियर? देयर इज वैल्यू इन ट्रेड। सो this was about international trade and tourism. Clear? So I hope this is clear to you. So now in case any one of you has any doubt, so you can ask. I'll take up your doubts. Rajwant ma'am? Yes, ma'am. You can stop recording now. Thank you. Okay, ma'am. Yes, students, if you have any doubt, you can